मुबारक हो। मैं आप सभी को इस सप्ताह के भाग में स्वागत करना चाहती हूँ और जो भी प्लेटफॉर्म जहाँ से आप देख रहे हैं आप सभी को एक हार्दिक स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपना वक्त को निकाल कर इस भाग को देख रहे हैं और अगर आप इस भाग को पहले दफा देख रहे हैं आपको एक हार्दिक स्वागत जाता है और हम आशा करते हैं कि आप हमारे और सारे वीडियोस भी जाकर देखें। Psalms 133 में परमेश्वर दिखलाता है कि वो हमारा शांति का राजा है। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी शांति से जिए और एक दूसरे के संग शांति बांटे और शांति से रहें। तो सवाल उठता है कि क्या आप अपने आसपास जो नेबर्स है या अपने दोस्तों है या अपने जो फैमिली मेंबर्स के संग शांति से रहे हो? अगर नहीं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आप परमेश्वर से आग्रह करिए कि वो आपको शांति दे और वो जरूर आपको देगा। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी को एक बार फिर स्वागत करना चाहती हूँ और एक मास्टर्स वेलकम चाहता है पवित्र आत्मा को जो हमारे संग इस कार्यक्रम भर रहेंगे। और इस सप्ताह हमारे भाग में आत्मिक भोजन रहेगा, कहीं मसीह गीत रहेगा, हेल्थ टॉक रहेगा और प्रार्थना भी रहेगा। तो हम आग्रह करते हैं कि आप इंजॉय करते रहिए। तो आप सभी दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम का पहला गीत में भाग लेंगे। The Adventist Church operates as an evacuation center in Kyiv, Ukraine, helping adults and children to escape the horrors of war. Adventist shelters help refugees from different parts of the country. Every shelter has mattresses and linen. People can stay there as long as they need to rest after an exhausting trip. Locals come to the churches trusting that God protects His own territory. They find some peace there, meeting with church members. These friendships open the way for some Bible talk. They worship, pray, sing,
read the Bible and Adventist literature to strengthen their spirits in hard times. Churches are not the only safe place for refuge, but remain as worship spaces for many. Some are still baptizing. In partnership with Hope Channel, the humanitarian agency ADRA is assisting with efficiency the different needs of the refugees. For many years now, campgrounds and Adventist clinics in Ukraine provide accommodations, food, counseling, and health therapy. But today, they are serving as shelters. As an example, Our House Clinic is hosting 200 refugees. The Ukrainian Adventist Center of Higher Education helped whoever needed it, while the students went back home. The churches attend to the people's needs in cooperation with ADRA and Hope Channel. One of the Hope Media Studios became a bomb shelter. Канал Студия. Это все в подвале. Seventh-day Adventists cook for the refugees that travel across the borders of Romania and Moldova and feed the citizens that are there, waiting for a ride at the train station in Odessa. A kitchen was built in Mohyliv Podilsky. In Starokonstantinov, they visited the soldiers' homes, bringing messages of hope and comfort as well as supplies. In Khmelnytsky, our church members also act as chaplains and as helpers to dig trenches. They are building shelters to the young in Kyiv, rescuing lives, providing hot meals to the homeless, as well as moving children living in an orphanage to a safe place. The believers from Mogyliv Podinsky cleared the road where there was a long line of refugees who traveled to Moldova and assisted the disabled families in Konotop. Adventists serve as angels of hope. बढ़ते जाएंगे
मैं आप सभी को इस सप्ताह का हमारा हेल्थ टॉक में स्वागत करना चाहती हूँ। क्या आप कभी अपने किचन में जाकर जो परचेज गुड्स है या जो चीज़ आप खरीद कर बाजार से लेकर आए हो, उसमें आप जो इंग्रेडिएंट्स में ध्यान कभी दिया है? या अगर आप शॉपिंग करते हैं तो क्या जो इंग्रेडिएंट्स डाला है उसमें कभी आप ध्यान दिए हो? मुझे भी डाउट है, परंतु जो हम हेल्थ कॉन्शियस लोग रहते हैं हम ध्यान देते हैं और वो बहुत अच्छी बात है। आज हमारे जो हेल्थ टॉक है कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट के बारे में है जो हम लगभग सब मील में यूज करते हैं, सारे खाने में यूज करते हैं और इसके बिना जिंदगी कभी कभी अधूरा लगता है। जी हाँ, आज हम नमक या सॉल्ट के विषय में देखेंगे। और अगर आपको और सॉल्ट के बारे में जानना चाहिए, हमारा इस सप्ताह का हेल्थ टॉक का सोर्स है medicalnews.com। तो और जानने के लिए आप medicalnews.com में जा सकते हैं। मैथ्यू 5:13 में कहता है, You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and trampled under foot। नमक, हम सभी को नमक की बहुत ज़रूरत है और खाली टेस्ट के लिए हम नहीं यूज़ करते, परंतु ये हमारे मसल्स और नर्व्स के लिए बहुत कामिल है, वो बहुत सहायता प्रदान करता है। परंतु हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नमक अगर हम खाएंगे तो हमारे सेहत के लिए वो बुरा रहेगा। तो सवाल उठता है, कितना नमक हमें ज़रूरी है? इस वीडियो आप देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा हमें कितना नमक चाहिए। पहले अब हम चेक कर लेंगे कि नमक कहाँ कहाँ यूज होता है। हम जानते हैं कि हम हर रोज अपने खाना में डालते हैं और वो अच्छी बात है, और हम जानते हैं कि प्रिजर्व करने के लिए नमक भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब छोड़कर हम अगर अपने डेली लाइफ में झांक कर देखें तो डाइंग यानी कि जो बाल का डाइज है या ब्लीच या जो साबुन हम हर रोज यूज करते हैं, इन सभी चीजें में नमक इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम नमक यूज करते हैं तो हमें क्या होता है, कितना नमक से हमें क्या क्या हो सकता है, यानी कि अब हम इफेक्ट्स में डाइव करेंगे। अगर हम बहुत कम नमक यूज करें तो हमें डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और हम बहुत ज़्यादा पानी पीने लगेंगे। तो हमें बहुत कम नमक नहीं चाहिए खाना, परंतु राइट अमाउंट खाना चाहिए। और अगर हम बहुत ज़्यादा नमक यूज करें तो हमें हाइपरटेंशन हो जाएगा और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत जोर से राइज हो जाएगा और हमें स्ट्रोक या हार्ट डिजीज हो सकता है। अब हम फिर से वो सवाल पर आ गए हैं कि कितना नमक हमें जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा है, उन लोगों ने रेकमेंड किया है कि नॉट एक्सीडिंग अ डेली सोडियम इनटेक ऑफ 1500 mg या 1.5 ग्राम्स अ डे। और अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो आधा टीस्पून नमक हर दिन। जी हाँ, ये तो चौंकाने वाली बात है क्योंकि कई लोग हैं एक मील में ऑलमोस्ट मोर देन 1 टेबल स्पून नमक यूज करते हैं, परंतु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सिर्फ आधा टीस्पून हमको एक दिन में यूज करना चाहिए। तो अब हमें सोचना चाहिए कि हम कितना नमक खाते हैं और कितना हमें खाना चाहिए। और ये वापस हमको लेकर जाता है कि हमारा हेल्थी डाइट में, और कि हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में नहीं सिर्फ परंतु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो फ्रेश हम खाते हैं उसमें सही मात्रा का नमक है।
और अगर हम सही मात्रा का नमक खाएंगे तो हमारा सेहत भी खुश रहेगा, और सबसे ज़रूरी हमारा परमेश्वर हमसे बहुत खुश रहेगा, क्योंकि हम अपने सेहत, अपने जो शरीर का ख्याल रखेंगे तो परमेश्वर हमसे और खुश हो जाएंगे। तो यही था इस हफ्ता का हमारा हेल्थ मैसेज। हम आशा करते हैं कि आप नमक के बारे में और गौर करें। शुभ रात्रि। सब लोग तैयार हो अपने राजा जी को मिलने को, जलिया ताज लाता तुमको देने को। ताज पहने मेरा यीशु तेरा यीशु आ गया। साथ आएंगे मारे को वो जगाएंगे, लाखों फरिश्ते साथ आएंगे मारे को वो जगाएंगे। जी उठेंगे यार होंगे साथ जाने को। ताज पहने तेरा यीशु आ गया। ताज पहने मेरा यीशु तेरा यीशु आ गया। प्रिय दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है सीनू हिंदी स्पीकिंग एसडी चैनल पर। और धन्यवाद एक बार फिर इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।
और इस शुक्रवार की रात की प्रोग्राम है जो आपके लिए लाया गया है। और यही आज प्रार्थना और विनती करते हैं कि जैसे हम वचन में जाए, हम यही प्रार्थना करें परमेश्वर से कि उसका जो पवित्र आत्मा है हम सभी को सहायता करेगा, मदद करेगा कि उसके जो वचन है उसे हम अच्छी तरह से समझे और समझते हुए उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में शामिल करें। तो एक बार फिर हमारे जो दर्शक हैं, कहीं से भी आप जुड़ा हुआ हो, चाहे वो वेस्टर्न से ही हो या नॉर्दर्न से या इस सेंट्रल के भाग से, आपका हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। और शुरुआत करने से पहले आओ एक साथ में हम अपना सिर को झुकाएं और एक प्रार्थना के द्वारा हम शुरुआत करें। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज तेरे साथ हम इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं और एक नई विश्राम दिन में हम आने वाले हैं प्रभु। और आपसे विनती है कि आप सहायता करना, मदद करना कि तेरे पाक वचन जैसे बांटा जाए प्रभु जी, उसमें तेरा पवित्र आत्मा जो है हम सभी के जीवन को अभिषेक करते हुए इस वचन को हम सभी को समझ दे प्रभु की हम अपने जीवन में जो बदलाव है उसे ला सके और अपनी जीवन और औरों की जीवन जो है उसे तैयार कर सके। सहायता करना प्रभु, यही प्रार्थना यीशु क्रिस्ट के ताकतवर नाम से चाहते हैं, आमीन। दोस्तों, आज एक खास विषय है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ और वो मनुष्य के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। दिन प्रतिदिन इसके विषय में हम चिंता करते, सोच करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को पार कर सके। तो आज का विषय जो है वो है आपके संबंध, जो है आपका संबंध परमेश्वर और जो आपके आदमी है उसके साथ। तो चले देखते हैं कि क्या होता है कि जो हम अपना जो कमाई है और किस तरह से वो कमाई जो है लेकर हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। और जब हम परमेश्वर के प्रति जब हम बातें करते हैं, हम ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर ही है जो हम सभी के जीवन में अपना आशीष जो है वो भरता है। वही है इस जगत का राजा और इस जगत के रचना करने वाला परमेश्वर। और हर एक चीज मनुष्य के जीवन में जो आते हैं वो परमेश्वर के इच्छा के द्वारा आते हैं। तो चले देखते हैं। और ये जो खास शब्द अंग्रेजी में जो बार बार हमें सुनने को मिलता है, आप इसे सुने होंगे, और वो शब्द है स्टीवर्डशिप। कई बार जब ये अंग्रेजी शब्द उठकर आता है स्टीवर्डशिप, तो मनुष्य यानी कि ईसाई का जो जीवन है, उसका जो सोच है वो दौड़ने लगता है, वो सोचने लगता है। और क्योंकि स्टीवर्डशिप बड़ी जल्द से हम पैसे के साथ जोड़ देते हैं। तो जब पैसे के साथ हम जोड़ देते हैं तो देने की बात आ जाते हैं। तो जब देने की बात आते हैं तो कई सवालें जो है वो उठ जाते हैं हमारे जीवन में। जैसे कि अगर मैंने अपना जो कमाई है उसे हम दिया किसी को, या गिरजे में दिया, परमेश्वर को लुटार को दिया, क्या जो हमारे लिए बचता है, क्या वो हमारे लिए हमारे जो जीवन है उसको भरपूर करेगा? क्या उस पर हम जी सकते हैं? क्या जो हमारे अन्य जो चीज़ें हैं जिसे पैसे से तल्लुकात होते हैं, जैसे कि जब अगर हम घर लिए हैं तो उसका जो पेमेंट करना है, क्या वो पूरा हो सकेगा? क्या हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा जो है, एडुकेशन जो है वो दे सकते हैं? या क्या हमारे घर में भरपूर तरह से खाने पीने के जो सामान है वो पूरा हो सकता है? और उसके साथ जुड़ा हुआ ये भी होता है कि क्या हम खुद अपने लिए जो चीज़ें हैं जैसे कि कपड़े हैं और जो सामानें हैं वो हम पूरा कर पाएंगे अपने जीवन में या नहीं? तो ये सब सारे सवाल जो है हम सबके जीवन में चलता रहता है। तो क्या होता है दोस्तों कि स्टीवर्डशिप के विषय में समझना बहुत जरूरी होता है, खास करके अगर आप परमेश्वर का एक सेवक हो और एक सच्चा सेवक, एक विश्वासी सेवक के नाते स्टीवर्डशिप जो है हमारे जीवन से, ईसाई जीवन से जुड़ा रहता है। और खास करके इस तरह से जुड़ा रहता है क्योंकि जब हम एक अच्छे कर्तव्य करने वाले ईसाई है तो परमेश्वर के साथ जुड़कर
आपका और मेरा जो ईसाई चरित्र है वो परमेश्वर में बढ़ता है, और उसके साथ साथ ईसाई का जो विश्वास है वो भी मजबूत होता है और प्रभु यीशु मसीह में जाकर अटल होता है। और आखिरी में जो खास बात ये है कि चाहे हम कितनों भी कमा ले, चाहे कितनों भी पैसे जो है उसे हम अपने पास जो बटोर भी ले या उसे बचा भी ले, एक चीज तो तय है दोस्तों कि हर एक चीज पर हमें परमेश्वर पर ही निर्भर रहना है। तो इसमें परमेश्वर का फायदा क्या होता है? तो परमेश्वर के साथ आपका जो गिरजे है, आपका जो परिवार है, आपके लिए ये क्या फायदामंद इसमें दिखाई देती है। और खास सवाल तो ये होते हैं कि जब हम अपने विश्वास में आकर और परमेश्वर को लौटाते हैं और परमेश्वर को देते हैं, तो वो परमेश्वर के फायदा के लिए नहीं दोस्तों, ये हम सभी के जीवन के लिए फायदामंद होते हैं। क्योंकि कैसे ये फायदामंद हमारे लिए होते? एक, सबसे प्रथम, हमेशा मनुष्य के जीवन में उसका जो नजर होते हैं वो खुद पर टिका होता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है ना। पर जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और परमेश्वर मनुष्य के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारे नजर जो खुद पर रहता है वो हमसे हटकर वो परमेश्वर पर आ टिकता है। तो चलिए और आगे देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सोच सकते अच्छी विचार से। तो अब हम विचार के विषय में, अपने सोच के विषय में बातें करते हैं। तो हमारा सोच जो है वो क्या है? हमारा सोच ये है दोस्तों कि किस तरह से हम अपने आप को या हम दुनिया को देखते हैं। हमारा जो दुनिया का जो तस्वीर है वही हमारा सोच है। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो किस तरह से वो आगे आकर उठता है हमारे सोच जो है, मनुष्य का सोच जो है। एक जो जरिया है जिससे मनुष्य का सोच आगे बढ़ता है वो है शिक्षा से, एजुकेशन से। और दूसरा चीज ये होते है कि हमारे जो घर में किस तरह से हमें हमारे माता पिता जो है वो हमें घर में शिक्षा दिए है, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो हमारे घर के, हमारे विश्वास का जो परंपरा होते हैं, हमारे कल्चर्स जो होते हैं, हमारा जो ट्रेडिशन होते हैं, वो हम सभी का जो सोच है वो लेकर आता है और उसे डेवलप करता है। और उसके साथ साथ जुड़ा होते हैं दोस्तों कि जो पुस्तक जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम शिक्षा पाते हैं और जिसे हम पढ़ते हैं। आज के समय में अगर हम देखें तो मनुष्य के सोच जो है उसके अंदर जो तस्वीर दिखाई देती है वो हमारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म से उसके जरिए से ही डेवलप होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि टीवी जो एक जरिया है और हमारे जो मोबाइल फोन में कई ऐसी ऐप है जो हमें जानकारी देते, जिससे हम अपने दिमाग को, अपने मन को उसे डेवलप करते हैं। एक जो इकोनॉमिस्ट था वो बतलाता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो हम बंद मन से जाकर अपने परिवार के लिए या खुद के लिए उसे हम खरीद लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि हमारा जो मन है उसे सोचा और ये हुक्म दिया कि हम उसे जाकर खरीदें। तो जो हम सोचते हैं उसे हम आकर कर्तव्य में दिखा देते, यानी कि एक्शन में वो आ जाते हैं। तो इकोनॉमिस्ट टिम जैक्सन का ये कहना है और वो कहते हैं कि लोग जो है वो अपनी जो आमदनी है उसमें इस्तेमाल करते हैं जो उसका जरूरत नहीं, और उस पैसे से इस्तेमाल करते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम वो पैसे इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास नहीं है। दूसरा,
हम वो चीजें खरीद बैठते हैं जो हमें जरूरत ही नहीं है। तो धर्मशास्त्र में जब हम देखिए तो धर्मशास्त्र में परमेश्वर का सेवक जो है पौलुस, वो आकर हमें अच्छी सलाह देता है और हमें यह सलाह देता है कि अगर हमें सही सोच रखना है और जो हम कमाते हैं बड़ी मेहनत से, जाहिर है आप मेहनत करते हैं सप्ताह भर और जो सप्ताह के अंत में कमा कर लेकर आते हैं तो अपने रोजी जीवन जो है, परिवार जो है उसे आप चलाते हैं कि परिवार जो है वो सुरक्षित रहे और खुश रहे। पर दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि अगर हम परमेश्वर से प्रथम जुड़ जाए और परमेश्वर से जुड़ते हुए उस पर हम विश्वास रखें, उस पर हम निर्भर रहे, कि जो कुछ हमारे आशीष में आएगा परमेश्वर के ओर से सप्ताह के अंत में वो परमेश्वर के लौटाते हुए हम सहमत रहेंगे, हम खुश रहेंगे कि जो कुछ भी बचा है वो काफी है। तो इसका शुरुआत किस तरह से हम करें, पौलुस हमें बताता है रोमियो के पुस्तक में चैप्टर 12 और वर्स 2 में, और उसमें लिखा हुआ हमें मिलता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि नया हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भलाई और भावती और सिद्ध इच्छा जो है अनुभव से मालूम कराते रहो। तो पौलुस यहाँ पर हमें यह कहता है कि सबसे प्रथम हमें अपना सोच जो है उसको काबू में लाना है। किस तरह से काबू में लाना है? वो कहता है कि अपने मन से बदलाव जो है वहां से शुरुआत कीजिए, कि मन के बदलाव कर दिए। कैसे हम करेंगे? धर्मशास्त्र हमें बतलाता है कि हम सबसे प्रथम परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि हम मनुष्य पापी हैं। हमें वो शक्ति नहीं कि हम खुद अपने आप में कुछ ऐसा काम करें कि हम खुद को अपना जीवन जो है बचा पाए, अपने पाप को क्षमा कर पाए। ये सब शक्ति हमारे पास नहीं है। ये सब सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, जो आपको बनाया है और हम सभी को। तो सबसे पहला कदम हमें उठाना है परमेश्वर की ओर, कि परमेश्वर तू हमें मदद कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, कि ये सांसारिक चीजों से हम बचकर रहे, दूर रहे, और जो आमदनी हम लेकर आते घर में आपके आशीष के द्वारा उसका सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चाहे वो हम अपने घर में हो, या सबसे प्रथम आपके गिरजे के लिए, या किसी को समाज में मदद करना है। तो पौलुस जो है वो आकर कहता है हमसे सभी से कि हम अपने मन का बदलाव जो है वहां से हम शुरुआत करें। दो खास चीज जो है दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ इस वचन से, उसके बाद में दो और हम देखेंगे। और सबसे प्रथम ये है कि जो बदलाव पौल जो हमसे कहते हैं कि ये करना चाहिए, अपने मन का जो बदलाव है, हमें ये जानना चाहिए कि हम खुद अपने मन के बदलाव जो है उसे नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हम पापी हैं, हम लाचार लोग हैं, बेबस हैं। और इसलिए पौलुस हमें बतलाते हैं कि दोस्तों मन के बदलाव जो है वो सिर्फ परमेश्वर हम सभी में लेकर आ सकता है। अंग्रेजी में हम ये कहते हैं कि हम मन के बदलाव के साथ पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो लेकर आए। और दूसरा चीज हमें ये बतलाता है इस वचन में, रोमियो के पुस्तक में चैप्टर 12 और वर्स 2 में, वो ये है कि क्योंकि ये बदलाव हम अपने आप नहीं ला सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास किसी तरह का और भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सही बदलाव लेकर आना, सही सोच हमारे मन में और हमारे हृदय में रखने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हमें ये भी याद रखना है कि ये जो बदलाव जो धर्मशास्त्र में आज कहती है लेकर आना चाहिए,
जो मन से शुरुआत होता है वो सिर्फ एक ही बार का नहीं है दोस्तों। हर एक दिन जब हम परमेश्वर के आशीष में, उसके दिए हुए जीवन में हर एक सुबह जब हम उठते हैं तो ये बदलाव हमारे मन में आना चाहिए और रहना चाहिए। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे खुद का लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हर एक सुबह जब हम उठते हैं तो हम एक नई सोच से उठते हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा होते हैं। और जब हमारे मन, हमारी जो सोच है वो परमेश्वर से जुड़ा होते हैं दोस्तों, तो क्या होते हैं? ये आखिरी वचन आपके लिए फिलिपियंस के पुस्तक में चैप्टर 4 और वर्स 8, और मैं आपके लिए ये पढ़ता हूं। निधन है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मानवनीय है, निधन जो सदागुण और प्रशंसा की बातें है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो धर्मशास्त्र में ये बतलाता है कि जब हमारे मन का बदलाव आ जाता है प्रभु यीशु मसीह के सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से दोस्तों, तो धर्मशास्त्र में ये करने को बतलाता है और ये बतलाता है कि हमारा ध्यान हमेशा टिका रहना चाहिए किस पर? एक जो सत्य है, जो आदरणीय है और जो बातें उचित है और उसके साथ जो बातें पवित्र है, सुहावनी है, मनोभानी, इस पर हम हमेशा ध्यान अपना जो है लगाया करें। और जब ये हमारे खुद के जीवन में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, तो क्या होता है दोस्तों, ये एक लाइफस्टाइल हो जाते हैं। तो जब हमें ये सोच आते हैं कि जब हम अपना कमाई लेकर आते हैं अंत में सप्ताह का, तो जब देने के समय आता है तो हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि इसमें परमेश्वर का नहीं आपका फायदा है, आपका आशीष है, क्योंकि ये आपके मन में है, आपके हृदय में है। एक परमेश्वर के अच्छे चेला बनने के लिए, अच्छे सेवक बनने के लिए मन का जो बदलाव है वो जरूरतमंद है हर एक दिन हम सबके लिए, कि हम उस परमेश्वर के साथ जुड़ा रहते हैं जो आज आपके जीवन में हर एक तरह का आशीष दी है, मतलब एक नई जीवन का वादा उसने आपको दी है। जैसे आज आप इस विश्राम दिन में आए हैं, ये परमेश्वर का देन और उसका आशीष है। और यही मैं प्रार्थना करता हूँ और ये हम सभी का प्रार्थना रहना चाहिए कि ये विश्राम दिन का सफर परमेश्वर के साथ होना चाहिए और उसके आशीष में, उसके वचन के साथ और ढेर सारे प्रार्थना के साथ। आओ हम एक साथ में प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु जी कि एक बार फिर तेरे वचन से जो सीख उसे प्राप्त किया है इस सुंदर सा विश्राम दिन में, और आपसे विनती है प्रभु कि एक बार फिर तू अपने चुने हुए लोगों को, जो आपका चेला है, जो आपके सेवक है, जो आपके स्टीवर्ड्स है प्रभु, सभी के विश्वास तू अपने प्रेम से बांध कि इस विश्राम दिन का जो सफर है तेरे साथ ही बीते, तेरे आशीष में, तेरे वचन में और ढेर सारा प्रार्थना में पिता। यही मांग और विनती करते हैं आज पिता कि हमारे कई जो परिवार है जो आज इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, सभी पर तेरा भरपूर आशीष हो। या कोई भी संकट हो प्रभु, कोई भी मांग हो, उसे तू अपने आंखों से प्रभु सभी के हृदय में झांक कर देख सकता है। और आपसे विनती है प्रभु, अगर आपका इच्छा हो तो सभी को तू पूरा करना, सभी जीवन में तो आशीष से भर दे, यहाँ तक कि स्वास्थ्य की भी आशीष प्रभु। धन्यवाद आज एक बार फिर
इस विश्राम दिन में हम सभी के साथ जुड़ने के लिए। और प्रभु आपके घरों में आशीष बढ़ता ही रहे कि आप परमेश्वर के प्रेम में हमेशा साथ दे पिता। ये प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से चाहते हैं, आमीन। In this world are so many voices, too many ways to follow. So I need time for some quiet reflection, for a sense of right direction. And then I heard our voice clearly say, take your cross